कि कनाडा में और पाकिस्तान में obviously you have lived as an in When it comes to relationships and specifically mine, I wouldn't say one mantra. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of PhysioWell podcast series. Today I have a very interesting personality in my studios. She is a psychologist. She has an expertise in breath work. Yes, breath work and meditation, which is very interesting. I have a lot to ask from her, and let's see what she has in her plate. Welcome. Hi Mary, how are you? I am बेहतरीन, आप कैसी हैं? Allah ka shukr. How's life treating you? Life is good. Good. Life is good. लाहौर की स्मॉग ने थोड़ा सा तंग किया हुआ, and I think that's everybody's story these days, but otherwise amazing. So, what's the difference between Canadian pollution and Pakistan pollution, if there is any, if Canada has any pollution? यार कनाडा, आई थिंक दैट हम थोड़ी देर पहले यही बात करते दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली किसी भी बाहर की कंट्री के अंदर आप जाएं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंट्रोल्ड है. पोल्यूशन आपको ज़्यादा नहीं मिला. पोल्यूशन ऑब्वियसली हर जगह पर है. आप यहाँ से अभी भी कहीं पर भी चले जाएंगे 10 साल पहले और अभी के कंपैरिजन के अंदर obviously pollution overall in the world has increased, but at the same time Pakistan, Lahore, especially Lahore these days, which is a shame, मतलब दुख होता है देखकर, to be honest. Yes, and you can't even breathe. Like your oxygen is being snatched from you now. So that's difficult. So, Mary, you're a psychologist, mashallah, and your expertise and your experience is in wellness and breathwork. So, what is breathwork, and how do you come up to this? अच्छा, breath work is something that आपको right from the beginning when you're studying, that I remember that our first class was actually an icebreaker with a breathwork session. Okay. And our professor walks in and he starts to say things that were very very alien to us. मतलब कि आप आंखें बंद करें और आपने सांस ऐसे लेना है और इस तरह की जब बात उन्होंने करना शुरू की तो I remember it was a group of let's say 40 people in the class. एंड ऑल ऑफ अस वर वेरी ऑकवर्ड क्योंकि हमें लगा कि हम पता नहीं क्या अब करने लगे हैं. इसी गना हिप्नोटाइज अस, हम लोगों को अब ये कहीं हम चले जाएंगे. बिकॉज द टेक्निक दैट जो हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था दैट्स कॉल्ड विजुअल और इमेजिनरी, आप जिसको मेडिटेशन कहते हैं. इसको आप गाइडेड मेडिटेशन भी कह सकते हैं. सो व्हाट ही डिड वाज दैट ही स्टार्टेड टू गिव अस इंस्ट्रक्शंस एंड दैट स्टार्टेड विद बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स. ठीक है. So you guys just sit. What is the atmosphere when you're doing this? अच्छा, मेडिटेशन का या ब्रेथ वर्क का एक बहुत बड़ा मिथ ये है दैट यू हैव टू सिट इन अ सर्टेन प्लेस, बत्तियां कम हो. नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है. ये एक मिथ है कि आपको इस तरीके से ही बैठना है, ये इन्वायरमेंट हो आपका. द बेस्ट ऑफ ब्रेथ वर्क, आई थिंक जब आप इवेंचुअली उस लेवल पर या उस कंफर्ट के ऊपर अपने साथ रीच कर जाते हैं, वो लेवल है जिसके अंदर आप एक शोर में, केओस में, आप किसी मार्केट में हैं, आप एक क्रेजी लाउड जिम के अंदर हैं और उस वक्त भी अगर आप अकेले बैठकर you can just connect with yourself and start to breathe in a certain way. That is the level that we eventually want to reach at. कि आप disconnected हैं from the outside world and then you're connected so much with yourself. So your question, which is that breath work क्या है और breath work कहाँ से start होता है? There are various techniques जिससे आप breath work कर सकते हैं. Overall in the world, people use breath work to hypnotize as well. They use breath work to relax themselves as well. आप खुद के लिए भी, आप individual भी कर सकते हैं, आप groups में भी कर सकते हैं ये. So depending on what your need is, depending on what your issue is, your therapist, your guide would sort of walk you down into the whole story जो कि आप create करेंगे in your mind. Another, I guess, misconception is कि जब आप ब्रेथ वर्क कर रहे होंगे या जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, सो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगे और आपको दुनिया की कोई परवाह नहीं होगी. यू विल फील लाइक अ फेदर एंड यू विल जस्ट फ्लोट इन एयर, समथिंग लाइक दैट. बट व्हेन यू बिगिन मेडिटेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से लोग हुक हो नहीं पाते हैं इन द बिगिनिंग, and that is that when you begin meditation, usually people become very anxious. आप एकदम से restless हो जाते हैं. मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ of एक बहुत शरारती बच्चा, एक बहुत loud chaotic बच्चा, और आप उसको कह दें कि जाओ दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ. Yes. उसका reaction क्या होगा? You have a kid, so you can imagine. वो He would never do that. He would never do that. वो शोर मचाएगा, वो जिद करेगा,
और वो लाउड होगा, उसको बहुत इरिटेशन होगा, व्हाई आर यू सेइंग दिस टू मी, व्हाई वुड आई डू दैट, उसको समझ नहीं आ रही होगी कि इसके पीछे व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट. So that's exactly how your brain sort of reacts when right in the beginning you tell it to shut down, you tell it to keep quiet, आप खामोश हो जाए. तो जब आप स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, द फर्स्ट कपल ऑफ सेशंस आर ऑलवेज वेरी वेरी skeptical for anybody. I remember one time we were doing this group session और एक बंदा ना बहुत disappointed हुआ after the session. Group session था, कुछ लोग, अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं जो literally इतने सुकून में चले जाते हैं that they would either sleep. There would be some people who will feel so connected to themselves that they will get overwhelmed and emotional. And then there'll be some people जो कि बहुत बेजार हो जाएंगे क्योंकि उनकी expectation different होती है. हम शुरू में ज़रूर एक introduction दे देते हैं कि आप इससे क्या expect कर सकते हैं और क्या expect नहीं कर सकते. वो बंदा उठता है, उसके बाद वो कहता है मुझे तो चक्कर आ रहे थे, ये क्या मेडिटेशन थी, मुझे मजा नहीं आया, मजा क्या, मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं तो ये कभी दोबारा नहीं करूंगा. एंड वी हैड टू टेल देम ऑब्वियसली कि भाई दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, कि हर किसी के ऊपर सेम चीज नहीं होगी. नॉट एवरीबडी वुड फील द सेम थिंग, नॉट एवरीबडी वुड फील द सेम वे एज वेल. आप फॉर एग्जाम्पल इन दिस रूम राइट नाउ वी आर 4 people एंड इफ यू स्टार्ट टू डू सम ब्रेथ वर्क, हर किसी की जिंदगी का आज के दिन का एक्सपीरियंस डिफरेंस है. यू हैव समथिंग एल्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, कोई और है, किसी की नींद की कमी है, किसी को भूख लगी हुई है, किसी को अगले घंटे की परेशानी है, वगैरह वगैरह. So whenever we're thinking of meditation, there are so many different factors that we need to consider, and then we get into it. So to begin with, I think that for anybody who's trying it out for the first time, they should consider being very very open-minded. Very open-minded with any therapeutical technique, वो चाहे सिर्फ काउंसलिंग ही क्यों नहीं है. क्योंकि जब आप लोग काउंसलिंग के लिए भी आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल majority of the people are very nervous. They think that okay, हमने अपना कुछ बातें बतानी हमें जज करेगा, हमें जज करेंगे. उसके अलावा एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि मुझे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बैठूंगा सामने और उनको समझ आ जाएगी. क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप ऐसे ही मुझे देख के बता रहे हैं. हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम अंतर्यामी तो नहीं है ना. मतलब अब मैं बैठूंगी और मैं कोई फेस रीडिंग कर लूं और मुझे कुछ समझ आ जाए आपकी आंखें देख के कि वो अच्छा आपकी जिंदगी में चल रहा है. पर्सनली आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट दैट ओके, मैं इस टाइप की हूं कि अगर मैं बैठी हूं ना तो वो मुझे देख ले और बस अंडरस्टैंड कर ले, कोई मुझे बताना ना पड़े, और अगर मैं बताऊंगी तो जज हो जाऊंगी. सो मेरी आपने मुझे ब्रेथ वर्क के बारे में बताया, तो आपने मुझे बताया कि डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट उसका रिएक्शंस और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. तो डिफरेंस क्यों है? उनकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट है इसलिए है, या वो शायद बाकी लोगों के सामने ओपन अप नहीं होना चाहते? आपको नहीं लगता कि सिंगल हैंडेडली या एक बंदे को पहले मेडिटेशन या ये ब्रेथ वर्क स्टार्ट करना चाहिए? It really depends. I think that when I began meditation, तो तब मेरे लिए भी I thought that it's more comfortable that I'm doing it individually. I remember for straight 7 days we were in sort of like a short course, and we didn't have any phones, we didn't have any technology, and we were supposed to meditate first right in the morning, सुबह उठते साथ. Really cold out in the field और बड़ा वो crazy scene था, and I miss that because ये ऐसे कुछ experiences होते हैं ज़िंदगी के जो आपको बार बार नहीं मिलते हैं. और दूसरा एक जो आपका meditation session होता था, that used to be before dinner but around 8ish, and that used to be again same very open outdoor field के अंदर वहाँ पर. So I remember feeling that अच्छा मैंने आंखें बंद की हुई हैं, I am breathing in and breathing out, और आप उसका टेम्पो और रिदम चेंज कर रहे हैं. You start off slow, then you start off, you बीच में आपकी रिदम थोड़ी चेंज हो रही है, फिर they would ask you to do different things. For example, one of the most common ways to do it is that I would ask you to keep your left hand on your heart, and I would ask you to keep your right hand on your belly, and then I would ask you to fill in your lungs, and then I would ask you to fill in your belly. अब majority of the times we are so conscious of ourselves, हमें बहुत अजीब लगता है कि लोग हमें देख रहे हो कुछ अनयूजुअल करते हुए कैसे लग रहे हैं. छोटी सी एग्जांपल, आप जिम चले जाएं, आप अगर पहली दफा जिम जा रहे हैं तो कोई सिर्फ एक वो जो एक उसको लगता है वो एक वॉक ऑफ शेम है, वो जो जिम के उस कोने से इस कोने में निकल के जाना ना, वो एक वॉक ऑफ शेम है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कोई मशीन यूज नहीं करनी आ रही है, मैं खड़ा कैसा हुआ हूँ, मेरा पोस्चर कैसा है. और जिम में जाके अभी सोचते हैं कि ओहो मैं मोटा हूँ. हाँ, आप लोगों के साथ कंपैरिजंस भी कर रहे होते हैं, आप लोगों को भी देख रहे होते हैं. तो आई थिंक दैट ब्रेथ वर्क, especially to begin with,
depending on who your guide is, I think it really depends on your guide as well, कि उनका आपको इंट्रोड्यूस करवाने का तरीका क्या है आपकी पूरी टेक्निक से. There will be people जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा, I know of someone who would really एकदम से, जिसको कहते हैं ना फ्लड कर देना, they would say, they would not ask you to begin with breathing, they would ask you to begin with dancing. ओके, दे वुड आस्क यू, हाँ, हाँ, वो आप एक ग्रुप सेशन के अंदर हैं और आपको, आप लोगों को नहीं जानते वहां पर, आप पहली दफा वहां पर गए हैं और वो आपको कहेंगे, म्यूजिक लगाएंगे, वो कहेंगे नाचना शुरू कर दो, और आप कहोगे, यू प्रॉब्ली वुडंट इवन मूव, आई वुडंट. And people do move? Of course, they would have to. Okay. The guide makes them move. क्योंकि जब Okay. तक वो move नहीं करा, they would shame them if they won't move. They would do that, and then they would, जब एक दफा उनकी एक पूरी ice break हो गई है, then they would ask them to now sit down. अब इतनी जो शर्म तुम लोगों को दिलवा दी, इससे ज्यादा आपका हरकतें देखी हैं, हाँ, इससे वर्ष क्या हो जाएगा. तो this is another way of doing it, that you flood somebody with so much that they're so overwhelmed with shame, with embarrassment, whatever. But then मुझे लगता है कि अच्छा, अब इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि आप किसी को इतना ज्यादा अपने आप से एक्सपोज कर दें, like they're exposed of themselves so much, and they become so comfortable with their environment that they now feel that okay, now everybody has seen me in the most funniest, weirdest place, हाँ, position, मेरा अपना posture, whatever, उसके अंदर मुझे देख लिया, अब इससे ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है. नाउ देन जब वो उसके बाद जब वो मेडिटेट करते हैं, दैट ग्रुप आल्सो फॉर्म्स अ बॉन्ड. So that is one way of looking at meditation as well. The other way is that people would make it look like a progression, कि आप आहिस्ता से start हुए, okay, just close your eyes, just breathe the way that you breathe. Now think about what have you been doing today. Form an intention. This is one very common way to begin yoga as well. कि आप एक intention form करें, नियत कर लें कि आज का जो आपका ये 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का सेशन है, वो आप क्यों कर रहे हैं. आपको सुकून चाहिए है, आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, आप किसी स्पेसिफिक इशू या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं. दिस 1 hour, these 15 minutes, आप किस चीज़ को डेडिकेट कर रहे हैं. सो दैट फॉर्म्स एन इंटेंशन, एंड देन यू प्रोग्रेस टूवर्ड्स ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. फिर विजिट जो आपकी विजुअल या इमेजिनेटिव आपकी जो मेडिटेशन है, जो कि यूजुअली गाइडेड होती है, उसके अंदर वी वुड क्रिएट अ सिनेरियो फॉर यू, एंड वी वुड टेक यू इनटू दैट सिनेरियो, एंड देन यू वुड बिट बाय बिट आप उसके अंदर वर्चुअली और लाइक इन बोथ. प्रॉपर, ओके, बोथ. एंड हाँ, अच्छी बात है आपने वर्चुअल की बात कर दी. बहुत दफ़ा जब आपके पास क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं कि वी डोंट वांट टू डू वर्चुअल सेशंस, क्योंकि वर्चुअल का शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, हम इन पर्सन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. फॉर श्योर, ऑब्वियसली इन पर्सन का, यू गो टू सम प्लेस, यू कम टू माई ऑफिस, आई कैन ऑफर यू कॉफी, यू कैन सी हाउ आई एम लाइक, एंड देन वी कैन सिट टुगेदर. दैट्स ऑब्वियसली अ डिफरेंट फील. बट एट द सेम टाइम कोविड की वजह से virtual webinars, virtual consultations. I remember even doctors, general physicians, and everybody, they started to have online consultations. It is as effective, I would say, but then at the same time, it depends on how you see it. अगर मेरा एक preconceived notion है कि यार this is not going to work for me, मुझे ना मुझे मजा आएगा ना मेरे लिए काम करना है, तो automatically you would feel that okay, this is not gonna work, and this would impact on the overall experience that you would have. Majority of my clients, I prefer taking online sessions. It's more convenient. It is, I think it's better. It's more convenient for both ends. Private? Yes, yes. I wouldn't do with clinics and with hospitals for now, basically because I'm now not here, so I wouldn't sit in an office. Okay, so I'm glad you just described it in very well way. और मुझे भी आज ही पता चला है what breath work is, what meditation is. So hypnotization is different from that. हाँ, hypnosis is different. Hypnosis में, so okay, hypnosis is हम कुछ जो टीवी में आपने मूवीज में देखा होगा कि आपको हिप्नोटाइज किया के थ्रू, वो बिल्कुल, हाँ, आपको हिप्नोटाइज किया एंड देन यू आर जस्ट कंप्लीटली आउट ऑफ योर कंट्रोल. इसकी जो सिंपल और बेसिक साइंस है, दैट इज दैट द थेरेपिस्ट, the hypnotist, or the counselor, they take you into your subconscious and your unconscious brain. Your unconscious brain is that जब आप sleep state के अंदर है आपने, और आपका जो subconscious brain या जो unconscious है, that is the state where you really are thinking from. Freud का पता होगा आपको,
So उसने हमें एक वो प्यारी सी बात बताई हुई ना, वो आइसबर्ग वाली, that there's if there's an iceberg there's only the tip of the iceberg जो हमें पानी के ऊपर नजर आता है, और जो पानी के नीचे वो हमें नजर नहीं आता. तो वो उसको उसके साथ उसने तशबीह दी हुई है कि जो आपका सबकॉन्शियस और जो अनकॉन्शियस ब्रेन है, that's under the water. And so when you're thinking, when you're doing life in general, you usually operate from your unconscious and subconscious mind जिसका हमें अंदाजा नहीं होता. For example, the way that I am today or the way that you are today, you're not because of what happened today. Yes. आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ We है, are the 2 साल result पहले of a क्या हुआ है. big story that is happening. Before you were born, your genetics, your parents. Okay, so in any relationship, like in husband wife or in, जैसे मैंने पहले बताया, जो आजकल relationships चल रहे हैं, उसमें जब आप एक्सप्रेसिव भी नहीं है और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा, यू नो, एक तरफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और एक तरफ एक्सप्रेशन होता है, तो आपको लगता है कि दिस इज द गैप विच द कपल्स आर फेसिंग? Yeah, again, I think it drops down to your communication that if you're not, if I don't tell you what I want and I just assume कि इनको खुद ही समझ आ जानी चाहिए, वही पहली साइकोलॉजिस्ट वाली बात कि मैं सामने बैठूं और मुझे इनको समझ आ जाए कि मुझे चाहिए क्या है. I think it's a very wrong expectation from people. I know that there are a lot of people who would say that, oh, I don't want to tell you what I want. आपको खुद पता होना चाहिए. लेकिन अगर मुझे बताना पड़ रहा है तो what's the point of, हाँ, you it's know, a common being phrase together? that, yeah, it's a common phrase that we would hear, but at the same time, I think that um, it's sort of, I could be wrong, but I think that it sort of comes from a place of some level of entitlement. And I think that this is a wrong concept where it says that आप अगले बंदे को खुद ही समझ में आ जाए. There could be certain things in life जो कि naturally आपकी तरफ आती हैं, मतलब you naturally understand. For example, I have, let's say, the emotional intelligence of seeing that if I see you sweating और आप थोड़ा सा discomfort के अंदर हो, I automatically ask you what do you need. I offer you water. I offer you, मैं पंखा चला दूँ, हम कुछ खाने को चले जाते हैं, बात करो मेरे से क्या हुआ. But there could be some things that I would just be completely oblivious of. मुझे awareness ही ना हो उस चीज़ की. आप अपने अंदर ही अंदर क्या सोचते जा रहे हैं. कोई एक चीज़ हुई है जो कि शायद मेरे लिए मैटर ही नहीं करती है, मेरे लिए वो चीज़ नॉर्मल है, तो मैं अगर ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लूँ दैट माई पार्टनर शुड जस्ट नो, उनको पता होना चाहिए ये बात. आई थिंक इट्स अ वेरी wrong expectation. It comes from a place of a little bit entitlement. हमें लगता है कि ये इसका रोल ये है कि इसको बस पता होना चाहिए. तो आई थिंक इट्स अनरियल. आपको बताना आना चाहिए. इट्स अ वीकनेस ऑन योर पार्ट. हम अंदर ही अंदर जब अपने में गुम होते रहते हैं और हम नहीं बता पा रहे होते, तो दिस इज अ वीकनेस ऑन योर पार्ट. इट्स अ कम्युनिकेशन इशू जो कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए. अगर आपको खुद नहीं आ रहा है तो देयर इज नो शेम इन रियली सिटिंग डाउन एंड टॉकिंग विद योर पार्टनर, और उनको सिर्फ इतनी बात बता दें कि यार आई हैव एन इशू, मुझसे बताया नहीं जा रहा, मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे बताऊं. Okay. और अब अगर अगला बंदा, if again you have to build a relationship where you both can be open with each And other, talk to each other. कि अगर प्रॉब्लम है, वो हम there's this season called Big Bang Theory, उसमें बड़ा मजे का वो छोटा सा कॉन्सेप्ट था. तो there are two people वो एक रिलेशनशिप में हैं. One of them is a scientist and the other is a waitress. और दोनों completely different लोग, और वो रिलेशनशिप में हैं and then the relationship is not working and they end up breaking up. And when they try to patch up again, वो कहते हैं कि वो लड़का कहता है उसको कि okay, so now what we're gonna do is we'll take our relationship like technology. Bug आ गया, Okay. अब now we work on the solution. Yeah. We work on the bug. We don't break the phone. Like you have to work as a team for for both of you. 100%. So in your experience, like आपके डेली कंसल्टेशंस होती हैं, तो आप मुझे कुछ ऐसा इंसिडेंट बताएं which is bizarre or which is weird but it is very important to address nowadays, so please highlight that point. अच्छा, I have two experiences to share. One is जो कि बहुत bizarre एक experience हो लोगों के लिए. Subjective बात है, क्योंकि देखें I can't shame someone saying कि ओ ये experience बड़ा ही weird है, क्योंकि anybody who's in that experience वो उनके लिए normal चीज़ है, right? और एक दूसरा एक्सपीरियंस वो है जो कि मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी आइडियल सिचुएशन, एंड अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज सब्जेक्टिव, जो कि मुझे एज अ पर्सन लगता है कि ओ ये आइडियल है. I recently had this client and he's talking about, he begins with talking about porn addiction, and then they start to talk about कि how उनका एक फेटिश था कि वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखना चाहते हैं. And when that happens, it begins, they make their person, their wife, very comfortable with it,
4 years of marriage, they're still married right now, and they say that they become very comfortable, and now the wife doesn't need the husband anymore. She's become so habitual of it, she's become so comfortable going out with other people that उनकी जो independence है अब उनके शौहर से Now the बर्दाश्त नहीं हो husband रही है. misses the old wife. Yeah, of course. Yeah. I think because इस तरह के जो सिनेरियोज हैं जिसके अंदर हम अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट से, Expose कर रहे हैं पहले उसको. आपने उसको कर दिया और उसके बाद when you see that you are losing control, and this was the conclusion of the whole conversation as well, that in reality the problem उन दोनों के दरमियान में ये मसला नहीं था कि ये करना है या ये नहीं करना है, and we're not getting into this कि ये गलत है या ये सही है. It's not on us and it's not for us to shame anybody. But problem यहाँ पर आ रहा था that he felt that he cannot have the control over the relationship anymore because पहले ये चीज़ जो वो खुद introduce करवाए थे, this was his idea. So that was fine if That it was in fine. his own hands. Now that it's not, he's losing control and he feels that there's a lack of control in his relationship. He doesn't feel respected anymore. Okay. He doesn't feel valued anymore. अब इस छोटे से एपिसोड से या इस छोटे से सिचुएशन सिनेरियो से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं that when you're in a relationship, आपको सरफेस लेवल के ऊपर प्रॉब्लम कुछ और नजर आ रही होती है, आपको लगता है ओ मेरा मसला ये है, but in reality when you dig down a little deeper you see that okay, the problem is not that what is the equation outwardly. किसी को बाहर से देख के लगेगा, वो कहेगा हाँ ये काम ही ऐसे कर रहे हैं तो मतलब यही प्रॉब्लम होगा, but inner self में वो मे बी egoistic प्रॉब्लम है, कंट्रोल का प्रॉब्लम है, डोमिनेंस का प्रॉब्लम है. Exactly. और मुझे लगता है ये रिलेशनशिप्स में ये बहुत ज़्यादा है, नॉट जस्ट दिस सिनेरियो पर्टिकुलर वाकया, बट किसी भी केस में. फॉर एग्जांपल हम अगर घर में अपने गेस्ट्स को बुलाना है and the wife wants the table to set like this way and the husband does not want this menu, so this even little control also makes a huge difference. Yeah. The other example is something that I think is very very ideal for anybody. I had a client who came from a very well off background and they got married to somebody जो कि एक गांव से थी, वो ज़्यादा educated नहीं थी, groomed नहीं थी, she was a village girl and he was a city boy और बाहर से पढ़े हुए हैं, this and that. When they got married, it was an arranged marriage, and when they started to see me, they were already married for 5 years or so. 5 साल हो गए शादी को. The husband was taking the wife to एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ग्रूमिंग, उनको थेरेपी पर लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी कोई थेरेपी ले रहे हैं वहाँ पर उनकी वाइफ भी जा रही है. ही इज मेकिंग श्योर दैट अच्छा वो मेरे साथ इंटिमिडेट हो जाएंगी तो मैं उनको इंडिपेंडेंटली भेजूं. ही वाज रियली वर्किंग ऑन द मैरिज एंड द वाइफ वाज रिस्पॉन्डिंग टू इट एज वेल. शी वाज अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मैं नहीं हूँ उनकी तरह की, एंड इट वाज नॉट, शी वाज ट्राइंग टू groom herself according to him. और ऐसा नहीं है, and again not to shame कि अच्छा अगर वो गांव से हैं तो वो अगर वो एक सादा खातून है तो उसमें कोई बहुत बुराई है. सादा खातून अच्छी नहीं होती, it's not like that. Yeah. इट इज दिस कि अब क्योंकि वो एक सिटी लाइफ में रह रही हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर उनको कुछ चीजों की जरूरत है, उनके हस्बैंड की डिमांड है, मे बी हस्बैंड की डिमांड भी कह लें या उनकी सिचुएशन की वो डिमांड है दैट शी इज नाउ गोइंग टू सी अदर पीपल, उनकी आगे फैमिली वो ग्रो करेंगे, दे वांट टू हैव अ सर्टेन लाइफस्टाइल, एंड सो इसकी वजह से दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर. सो दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ टू पीपल जो कि कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं. उनका बैकग्राउंड सेम नहीं है, उनकी एजुकेशन का लेवल सेम नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनका गोल कॉमन है. एंड आई थिंक दैट ड्रॉप्स डाउन टू दिस दैट when in a relationship you're in a problem, you're in a conflict, and I think that if you don't have a common goal, अगर मेरा गोल ये नहीं है that I want to work on this relationship और मेरे पार्टनर का ये गोल है तो हम हर वक्त एक रिफ्ट के अंदर रहेंगे. वन साइडेड नहीं हो सकता. जब आपको ये पता है कि अच्छा मेरा कॉमन गोल ये है that we have to make it work, so you both will work on it together, you'll both try to come midway somehow and you would want to talk about it as well. तब उसमें कोई ईगो नहीं आएगा, तब उसमें ये नहीं होगा, उसमें वो अगर गुस्सा या वो मुझे क्यों कह रहा है या मुझ में क्या, why he is trying to dominate me, again आप विक्टिम नहीं बनेंगे, आप वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द रिलेशनशिप एंड बेटरमेंट, एंड यू हैव टू कम ऑन द सेम प्लेट. ओके, सो मेरी इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो गई, ठीक है, आपने मुझे बताया. सो आप मुझे बताएं व्हाट्स योर मंत्रा इन लाइफ एंड व्हाट्स योर प्लान फॉर द फ्यूचर. ऑब्वियसली that one thing that how you are planning to keep your relationship or your life composed and happy.
Yeah, I think this is one question that has really rang 1,000 bells in my head in this entire year because I'm about to get married. Yes, that's why I asked. Yeah, I'm about to get married and I think that जब आप ऐसे एक serious committed relationship में हो जहाँ पर you have to question everything about life and everything about yourself because वही बात that these are two completely different people, completely different backgrounds. You don't know what is what for someone. वो किस चीज़ को value कर रहे हैं, आप किस चीज़ को value कर रहे हैं. तो आप अपनी भी बहुत सारी चीज़ों को question करते हैं, उनकी भी चीज़ों को question करते हैं. I think one of the most important things in a relationship, especially when you're getting into a new one, you need to have a very big heart. Yes. I think that, and the big heart is not just for loving someone, but it is also to forgive someone. और मुझे लगता है कि जब तक आप में वो वाला दिल नहीं है जिसके अंदर आप एक दिन के अंदर कोई 600 चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, टेबल मेरी तरह से सेट नहीं हुआ, बट आई हैव टू समहाउ एडजस्ट इनटू दैट. And that adjustment is not the वो जिस एक लफ्ज को हमारी पिछली 3 जनरेशंस ने बहुत शेम किया ना, वो लफ्ज था कॉम्प्रोमाइज. yes. और उस कॉम्प्रोमाइज को हमने बहुत शेम किया. हमने कहा कि अच्छा औरत कॉम्प्रोमाइज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, वो वर्ड बेचारे कोई कॉम्प्रोमाइज कर दिया है. आदमी को कह रहे हैं जिस भी तरीके से उसने कॉम्प्रोमाइज करना है, और नॉट योर नीड्स एनी मोर. द फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, कि कैसे आदमी के ऊपर एक प्रेशर है कि उसने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और इतना होना है कि वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दे, वो भी अपने आप को भी हैंडल करे, फैमिली को भी हैंडल करे. एंड देन आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर ऑब्वियसली फॉर देम एज वेल दैट यू नो, एक हम एक्सपेक्ट करते हैं लड़का जी अब आप 25 साल के हो गए हैं, अम्मी का प्रेशर आ गया जी बेटा आप शादी शादी शादी. अब बच्चे ने अपनी ग्रेजुएशन आज के दौर के अंदर you're between 25 to 30 if you're completing your masters, your higher education and everything, वो भी कर लें, अब नौकरी भी स्टार्ट कर लें, अब आप शादी भी कर लें, अब शादी होगी तो आप बच्चा भी पैदा कर लें. सो हर चीज हमें चाहिए, वही पंजाबी कॉन्सेप्ट हमारा कि हमें हर चीज एक बेचारे मर्द ने इतना कुछ करना है. और उसी तरीके से वाइस वर्सा with the woman as well, there will be several expectations as well. So anyway, I think that when it comes to relationships and specifically mine, I wouldn't say one mantra could वर्क फॉर एवर. आपकी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के अंदर डिफरेंट तरीके से आपको चीज़ें चाहिए होंगी. आज मुझे अगर तहम्मुल के साथ पेश आना है तो कल शायद मुझे अपनी बात रखने के लिए आई वुड हैव टू गेट मे बी a little more assertive. I wouldn't say dominant, I wouldn't say badtameez. Speak up for yourself, but be more assertive as well, for maybe because maybe again you have to also make sure that you and your partner, दोनों की intention ये है कि साथ में रहना है, दोनों की intention ये है कि हम एक दूसरे को hurt नहीं करना चाहते, intention ये है कि we want good for each other. अगर आपकी ये intention एक दूसरे के साथ clear है, then you put your point in a way that your partner also does not feel like you're shaming them, whether it's your present or your past or your future. उनकी सोचने का तरीका अक्सर, I remember somebody जो कि अपनी हम एक गैदरिंग में बैठे हैं और ये बहुत कॉमन है कि हम मियाँ बीवी एक दूसरे को ताने से मार देते हैं और कहेंगे हाँ ये तो करते ही ऐसे कर रहे होते हैं, हाँ ये तो करते ही ऐसे हैं, हाँ इनकी तो आदत है ऐसी, इस तरह करके हम ये कर देते हैं लोगों के सामने. एंड पीपल वुड हैव दिस परसेप्शन ऑफ यू एंड योर पार्टनर कलेक्टिवली लाइक दैट, दे वुड कीप इट. मैंने अपनी बहन के सामने अगर बता दिया ना एक दफ़ा कि ओके ये मसला हुआ हमें, मैं भूल जाऊंगी, but they will not forget it and they will always have that perception about your partner in front of them. So I think that number one, keep a big heart when it comes to your relationship. And second of all, I think that as long as both of you are on the same page, of course उसको टॉक्सिक मत बनाए. ये नहीं है कि हम दोनों आपस में डिसाइड कर ले हाँ एक थप्पड़ तू मुझे मार ले मैं तुझे मार लूं, वो वाला हिसाब मत करो. मैं तुम्हें दुरुस्त करूंगा तुम मुझे दुरुस्त करो, वो वाला हाल मत करो. लेकिन ये है कि bring a balance in a way that you both are on the same page, other people are not involved in your relationship. There's this relationship expert, Steve Harvey, he's also a comedian, and he one time mentioned a really interesting thing, and that was when you're in a relationship, when you're in a marriage specifically, form a two-handed circle and don't let anybody else enter into it, not even your kids. And I thought that this was the biggest advice that somebody can give to somebody, क्योंकि जब औलाद भी हो जाती है तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट कल्चरली स्पीकिंग ये है बच्चे पहले.
माँ के लिए भी कि ओके किड्स कम फर्स्ट, बाप के लिए भी कि अच्छा बच्चे ने ये कह दिया तो नहीं. हाउ इट शुड बी इज दैट यू बोथ आर ऑन द सेम पेज. आप बच्चे के सामने लड़ाई मत करें, आप बच्चे के सामने एक दूसरे से डिसएग्री मत करें. अगर करें तो इतना रिस्पेक्टफुली करें दैट अगले बच्चे को वो एक एग्जांपल मिले दैट ओके व्हेन यू हैव डिसएग्रीमेंट्स हाउ डू यू गो अबाउट इट, यू डील विद दिस वे. या Okay. So yeah. Okay. So Mary, now that you have told me about your idea of, relationship. So now I know that you have come from Canada and आपका पार्टनर यहाँ पे होता है. सो एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अभी एक ये डिसएग्रीमेंट है, दो पॉइंट्स हैं, तो कनाडा में आपने लाइफ को कैसे देखा? हाउ वाज द लाइफ हियर? क्योंकि आप एज अ सिंगल वुमन वहाँ रह रही हो. अब नाउ यू आर गेटिंग मैरिड इंशाल्लाह. सो हाउ वुड यू take it and what would you suggest to couples who are in the same situation, that how would you take it if you have disagreements on a bigger level? This is not, I would not call it a disagreement, but maybe two different thoughts, कि आपने अब रिलेशनशिप को जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो किस तरह उसको रिस्पेक्टफुली आपने लेकर चलना, और वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ को आप किस तरह जो है मेंटेन मैनेज करें. यार आई थिंक चाहे आप पिंडी में रहते हो और या आप कनाडा में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस इज गोइंग टू बी अ बिच एंड लॉन्ग डिस्टेंस विल हर्ट यू. लॉन्ग डिस्टेंस इज हार्ड क्योंकि जो बात आप एक मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव अ वे ऑफ सेइंग समथिंग, और जो मैं आपको सामने बैठे हुए शायद मैं एक मजाक में बात कर दूं एंड यू विल अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली. वो शायद अगर मैं टेक्स्ट पे बात कर रही हूँ या अगर मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट शायद उस तरीके से ना जाए, स्पेशली इफ यू आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ ईच अदर. वही घूम फिर के बाद पे वो सेल्फ अवेयरनेस पे आ जाती है, एक दूसरे के हाँ अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन के ऊपर आ जाती है. दैट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर एंड द सिचुएशंस, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है. हमारे लिए भी रहा बहुत ज़्यादा मुश्किल. एंड आई थिंक दैट इट वाज स्पेशली बिकॉज वी वर ओनली we met. It was 2 months of a relationship. We got engaged and then I left. और वो 2 महीने के अंदर आप बहुत भी कर लें तो मतलब I think that's usually they would say, oh, first 2 years are your honeymoon period, and so we were just 2 months in and then I left. So I think it gets really hard in terms of really knowing and understanding where is the other person coming from. जहाँ तक बात है कि इसको रिजॉल्व कैसे करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली इसको कैसे डील करना चाहिए, आई थिंक दैट empathy is one of the most important tools when it comes to relationships overall. जो मर्जी relationship आपका आपके माँ बाप के साथ है, बहन भाई के साथ है, आपका आपके पार्टनर के साथ है, when you empathize, when you put yourself in their shoes and when you try and see what are they really feeling like, मेरी इसमें ego आपको अपनी obviously drop करनी पड़ती है. You can't really be egoistic and you can't be thinking just with one tunnel vision. एक lens से नहीं आप सोच सकते, क्योंकि जब आप वो वाला vision अपना on कर लेंगे तो automatically you will stop thinking from their perspective. और जब तक आप दूसरे के perspective से नहीं देख सकते हैं तब तक आपको सिर्फ अपना selfish solution चाहिए होगा. मुझे चॉकलेट खानी है, जहाँ मर्जी से लेकर आओ. लॉकडाउन लग गया है, दुकानें बंद हैं, I don't care, अली के घर से लेकर आ जाओ. I don't care. So I have to see what really the situation is as well. So I think मुझे सवाल भूल गया, sorry. कोई बात नहीं, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ये था कि कनाडा में और पाकिस्तान में ऑब्वियसली यू हैव लिव्ड एज एन इंडिपेंडेंट सिंगल वुमन, सो क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके, जहाँ तक बात है लिविंग सिंगल एंड स्पेशली इन अ न्यू कंट्री, और जब आप एक इमिग्रेंट के तौर पे जाते हैं, जब आप स्टूडेंट होते हैं या यंगर, लोग थोड़ा आपका ना ख्याल भी कर लेते हैं. आप कोई ज़्यादा रोटी भी पूछ लेता है, आपको कोई ज़रा बेचारा पढ़ने आया हुआ है, बच्चे हैं आप, आपको इतना ज़्यादा आपको रेसिज्म भी नहीं फेस करना पड़ता, इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होती है. इट्स अ फैक्ट दैट wherever you go in the world, as a Pakistani, you will be a third class citizen. क्योंकि especially in a Western country, Western developed nation, क्योंकि sure they're more developed in terms of infrastructure, in terms of education, in terms of all of that. But when it comes to looking at people, उनका वहाँ पर लोग टीवी नहीं देखते हैं, वहाँ पे लोग न्यूज़ नहीं देखते, उनको नहीं पता पाकिस्तान मैप पे भी कहाँ पर आता है.
हमें पता है यूएस कहाँ पे है, हमें पता है हमने कनाडा पूरी पे है, रिसर्च की हुई है। हमें पता है कि कौन उनकी हॉलीवुड में क्या चल रहा है, उनका म्यूजिक कैसा है, या उनकी लैंग्वेज क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली वी स्पीक देयर लैंग्वेज एज यस वेल। उनको एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, दे डोंट अंडरस्टैंड द कल्चर, दे वुड थिंक, वो जनरलाइज कर देंगे कि एक बुरा एक्सपीरियंस सारे हम ऐसे हैं। ट्रू। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 2 डेकेड्स के अंदर देसियों ने जितना स्कैम किया है गोरे को, उनको लगता है हम सब स्कैमर हैं। वो हमें नौकरी पे रखने से पहले वो हमारे 600 डर हजार जाते हैं। चीजों का वो पूरी तफ्तीश करते हैं। ट्रू। आपका पुलिस चेक होगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, आपके पिछले एम्प्लॉयर से पूछा जाएगा, वो सारी चीजें क्योंकि स्पेशली उनको पता है कि इन्होंने लाज में कोई कहीं ना कहीं कोई दो नंबरी निकल घपला ही किया आनी है। होगा, ट्रू। especially with the employment crisis right now in the world. This is a big issue. Why? Because उनको अब समझ आ गया. I was working for Employment Ontario, which was by the government and the ministry, and what they did was we would have softwares, और क्योंकि Okay. अब मैंने एक दफा काम कर लिया तो मुझे अंदाजा है कि अच्छा कैसे उनको पता चलता है, क्योंकि हमें लगता है कि उनको क्या पता चलेगा, बट इट लुक्स वेरी स्टूपिड, क्योंकि जब आप जाकर अपना सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, सिर्फ आप नाम भी ना बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपना फर्स्ट नेम बता दें, आपका इंटायर रिकॉर्ड ऑफ कहाँ पर आपने काम किया, क्यों आपको निकाला गया, क्या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें आपकी सामने आ जाती हैं। जब वो आ जाती हैं, इफ आई एम लाइंग अबाउट मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, हमारे पास वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, एंड दिस इज मेजोरिटी ऑफ द देसीज देयर नाउ, क्योंकि लास्ट 3-4 साल में कनाडा में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुई। उनको अपना एड्रेस पढ़ना नहीं आ रहा होता, फेक डिग्रीज, फेक बैंक स्टेटमेंट्स, ये वाली अजम्पशन के अच्छा जाके देख लेंगे हम, वहाँ पहुंच कैसे जाते हैं? फेक डिग्रीज एंड फेक बैंक स्टेटमेंट्स, द पीपल दैट यू वुड लुक एट और आप कहोगे कि नो जजमेंट, लेकिन ये कहाँ से कैसे आ गए ये लोग, डिफरेंट स्कीम्स एंड डिफरेंट राउट्स ऑफ गोइंग टू, पता नहीं थाईलैंड चले जाओ, वहाँ पे जेल में रह लो, वहाँ से जाके असाइलम अप्लाई कर लो, यहाँ पर फेक केसेस। आई नो पर्सनली ऑफ अ फैमिली, इन्होंने अपना एक फेक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बनाया, पाकिस्तान में एफआईआर भी कटवाई, एफआईआर Okay. कटवाने में तो कोई बड़ा कार वो क्या कहते हैं उसको, मार्का। मार्का नहीं है ना, फेक एफआईआर आपने कटवा ली, और उसके बाद उन्होंने वहां पे वो शो कर दिया कि देखिए जी मेरे पे एफआईआर भी मैंने कटवाई My हुई life है, is at risk. माय लाइफ इज अंडर थ्रेट एंड रिस्क, एंड सो मुझे आप असाइलम दे दें। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गॉट देयर असाइलम डन, एंड दैट्स इट, एंड दे कम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली बैक होम। People do that. People do that, and that's very very common. खैर point being that they now know it, they now know it, Yeah. and this is why they try and make sure, और जब हमारी पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती है ना तो हमें बहुत दुख होता है, ओहो इन्होंने वीजे टाइट कर दिए हैं, इन्होंने वो वीजे यही बड़े सख्त रीजंस कर है दिए ना। हैं। इट्स बिकॉज हम में से मेजोरिटी लोग ऐसे होते हैं, और टू बी ऑनेस्ट हम में से किसी को भी ये मौका मिले, हमारे लिए आसान और कन्वीनियंट यही होता है ना। मुझे अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ एक अगर बैरियर है कि ओ मेरी तुम्हारे पास पीएचडी की डिग्री नहीं है इसलिए तुम्हें फलां कंट्री का वीजा नहीं मिल रहा, मैं कहूँगी अच्छा मैं निकलवाती हूँ। PhD। निकलवाया आपने अ कपल ऑफ 1,000 रुपीज, या सॉरी यार, अच्छा अ कपल ऑफ 1,000 रुपीज एंड दैट्स इट, यूर गुड टू गो, आपको वीजा भी मिल गया, आपको जो आपकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहिए, आपको जो पासपोर्ट चाहिए वो आपको सब कुछ मिल गया। एंड दैट फैसिनेशन आई थिंक जो हमें लगता है कि शायद बाहर चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा? आपने क्या यार फील किया? क्या होगा? साफ हवा है, अच्छा। सांस अच्छी आती है, उसके अलावा मेरा ख्याल है कि द प्लेस वेयर यू आर बॉर्न, the people that you have around you, if you have a good social circle, if you have good resources, I don't think that one should move, because इस एज में लेट्स से फॉर एग्जांपल इन योर, लेट्स से इफ यू मूव इन योर अर्ली 20s जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पर फिर भी इट्स ईजियर फॉर यू, बट व्हेन यू मूव स्पेशली इन अ वेस्टर्न कंट्री एंड विद दिस इंटेंशन कि मैं इमिग्रेट कर रहा हूँ, मुझे पासपोर्ट चाहिए, ऐसी कोई चीज़, व्हेन यू मूव इन योर 30s इट गेट्स रियली हार्ड, इट्स वेरी हार्ड फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। आपको एक डेकेड आपने अपने दिमाग में रखना है कि 3 से 5 साल फुल खवारी है, और उस खवारी के बाद व्हेन आई स्टार्ट टू रियली स्टेबलाइज माई सेल्फ, maybe the next generation, मेरे छोटे बहन भाई, maybe they will try they to will they will reap, enjoy that। हाँ they will thing। reap the benefits out of it, लेकिन मेरे अपने लिए मेरे बाल भी झड़ जाएंगे, मेरी स्किन भी फट जाएगी, मैं वेट या तो बहुत गेन कर लूंगी या मैं बहुत लूज कर लूंगी, मेरी शक्ल पे गुर्बत नजर आ रही है कि ये जो है परदेश से आया हुआ है लेकिन ये वहाँ पे करीब है, यहाँ पे अमीर है। So Mary, I had a wonderful time with you, Same and here. frankly speaking, I was not expecting this podcast कि इतनी interesting हो जाएगी मेरे खुद के लिए भी, but I literally had new insights to new things from you, and I hope for my audience as well. Last but not the least, of course, please मुझे एक लाइन में बताएं about relationships, the world,
एंड वट एवर वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इस के यू नो क्रक्स क्या होगा हमारी पॉडकास्ट के एंड पे इन 1 or 2 लाइन्स के हाउ वुड यू जस्ट समराइज इट? साइकोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक क्लीन स्लेट होता है, और फिर उसके बाद वो कलर आप उस पर करें, वो खुद उस पर करे, इट बिगिनस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और उस क्लीन स्लेट को फिर आपने भरना होता है, और आप कैसे भरेंगे वो आपके अपने कंट्रोल में है। ज़िंदगी इज़ नॉट एंटायरली इन योर कंट्रोल। आपको बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो कि कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होती हैं। सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है, प्लानिंग कुछ होती है, कोई और कुछ और प्लान कर रहा होता है आपके लिए। आई थिंक दैट व्हेन यू आर गोइंग आउट इन लाइफ, जब बच्चा घर से निकलता है तब तो माँ बाप को दिल बड़ा करना चाहिए, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा दिल करके निकलना चाहिए कि life will bring you anything, and I have to be open in my mind and in my heart to accept what is valuable, to put boundaries on what is not valuable, but let it come. एक concept है meditation के अंदर, that when you're thinking while you're meditating, so don't stop the thought, let it come and let it go. So anything that's happening to you in life, वो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, it's fine. let it come and let it go. Means let it come, let it go, whatever comes your way, it's all right. Because ये जानना भी बहुत ज़रूरी है. So Mary, I really wish you all the best. और जो भी आपने बताया है, at least I am going to keep it in my heart and I am going to follow the instructions because as a young married mother, I think मैंने आपसे बहुत कुछ आज सीखा है and I am definitely going to keep it with me. Thank you so very much for having me. Thank you.